अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। Today our topic is quadratic equations. Today our topic is quadratic equations. Pizza, food. The general quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general quadratic equation. Quadratic equation is an equation which has the variable power 2. The maximum power of the variable is 2. That is called the quadratic equation. If an equation has the variable power 2, that is called the quadratic equation. So this is the general quadratic equation. We will solve the quadratic equation by the method of quadratic formula. If you have this type of equation, to solve the equation, to find the value of x, we will use the quadratic formula. Quadratic formula is the value of x will become minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula which you have already learned in your metric and inter, etc. Hasnan Aslam and Noman Azhar. Rabika Usha Pat. Rabika. So if we have this type of equation, the quadratic equation, we will use this formula to find the answer, to find the value of x, which is called the solution of the equation.
So what is this? The formula minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. What is b? B is the coefficient of x. B is the coefficient of x. Then b square, the square of the same thing. Then 4a. A is the coefficient of x square. A is the coefficient of x square. 4 is of formula. 4 is of formula. A is the coefficient of x square. C is the constant number which is without x upon 2a. 2 into the coefficient of x square. So this formula will be used to find the value of x. And before applying the formula, we have to convert the equation into the standard form. In standard form, the first term will be x square, the second term will be x, and the third term will be without x. The first term will be x squared, the second term will be x, the third term will be constant. So this is the quadratic formula. So first of all, we have to convert into the descending order. First x square, then x, then without x, then equal to 0. On the right side should be equal to 0. On the left side, all the terms must be in descending order. The first term should be x square, the second term should be x, the third term will be without x. And the third thing, the first term must be positive. The first term must be positive. If it is not positive, we have to change all the signs, so that when it will become positive, all the sign will be changed. If the first term is negative, we have to change all the signs of the terms, so that the first term will become positive. So then Alvina Rashid. Then Sabah Ghaffari. Umar Mohsen. So you have to remember the formula. Formula will be applied when you have the quadratic equation in standard form. Standard form means it should be on the right side should be equal to 0, and on the left side should be all the terms must be in descending order. The first term will be x square, the second term will be x, and third term will be constant without x. And the third condition, the first term must be positive. If it is not positive, we have to change into positive. We have to change into positive by changing the sign of all the terms. If the first term is negative, we have to change all the signs so that the first term will become positive. Sundar. Okay. So now we will do the exercise. We are doing the exercise 4.1. Exercise 4.1. Page is 136. We will do question number 1. Question number 1 is x square minus 6x plus 5 equal to 0.
This is the first question. So first of all, we check on the right side must be equal to 0. So the first condition is fulfilled. The second condition, on the right or the left side must be in descending order. The first will be x squared, then x, then without x. So second condition is also fulfilled. Third condition, the first term must be positive. The first term is already positive. So there is no need to change to do anything. So it is in the standard form. Now we apply the formula. So first we will just select A, what is A, what is B, what is C, we will write over there. It is not necessary, but for to make you understand, I am writing over there. मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ A, B, C क्या होंगे. A क्या होगा? X स्क्वायर का कोएफिशिएंट. X स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. A will be equal to 1. B क्या होगा? X का कोएफिशिएंट, ये -6 है. अगर नेगेटिव साइन है तो साइन भी लिखना पड़ेगा. अगर पॉजिटिव है तो नो नीड टू राइट द साइन. अगर नेगेटिव साइन है तो वो हमें लिखना पड़ेगा. अगर पॉजिटिव साइन है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. C क्या है? कांस्टेंट है, वो +5 है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ 5 लिख देते. A B C अब हमें पता चल गया. अब इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे. x हमारे पास क्या है? यहाँ x है, वो यहाँ जो भी वेरिएबल होगा, अगर यहाँ x है तो x ही यहाँ लिख देंगे. अगर यहाँ y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y लिख देंगे. z की वैल्यू निकाल रहे हैं z लिख देंगे. q की वैल्यू निकाल रहे हैं q लिख देंगे. p की वैल्यू निकाल रहे हैं p लिख देंगे x की जगह पर. तो इसकी इस इक्वेशन में भी x ही है वेरिएबल, तो यहाँ हम x लिख देंगे. x इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन, b है हमारे पास -6, ये ब्रैकेट में पहले फर्स्ट स्टेप में हर a b c तमाम ब्रैकेट्स में लिख देंगे. b की जगह ब्रैकेट में -6 लिख दिया. फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो -6 को भी ब्रैकेट में लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया. फिर -4 लिख दिया. a की जगह ब्रैकेट में 1 लिख दिया. c की जगह 5 लिख दिया. All must be in bracket. b is also in bracket. b square, so -6 whole square -4. a की जगह 1 और c की जगह 5 लिख दिया. उसके बाद हमने लिखा 2a. a की जगह हमने 1 लिख दिया. ये हमने तमाम चीजें इसमें पुट कर दिया. अब इन ब्रैकेट्स को हमने ओपन करना है. We will solve the brackets. It will be equal to, यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा, ये लिख दें तो ना लिखें तो इसका अंडरस्टूड ये होगा कि यही चीज यहाँ आ रही है. यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इक्वल डाल दिया. दिस द सेम थिंग विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. व्हाट इज ओवर देयर, दैट विल बी ओवर देयर. सो माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम +6 प्लस माइनस. और यहाँ एक और चीज देख लें आप, ये माइनस जो है ये सिर्फ b के साथ है, इस वाले नंबर के साथ, ये होल के साथ यहाँ नहीं है. दिस इज नॉट ओवर देयर with the whole. This is not over there with the whole expression. This is with the b. This negative sign is only with the b. उसके बाद 2a, ये होल के नीचे है, यहां से लेकर यहां तक. 2a is under the whole expression, not only under root. अंडर रूट वाली टर्म के नीचे अक्सर बच्चे यूं कर देते कि सिर्फ अंडर रूट वाली के नीचे 2a लिख देते, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखते. वो गलत हो गया क्वेश्चन आप. ओके, -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36. माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस. 4 into 1 will be 4, 4 into 5 will be 20. Upon 2 into 1 will be 2. 6 plus minus under root 36 minus 20. Mahir Sayyid.
Okay, now we'll simplify this one further. This is a symbol for the implies, yani that after this is the step. 6 plus minus root 36 minus 20 will be 16, root 16 upon 2. 6 plus minus root 16 upon 2. Okay, so that is 6 plus minus 6 plus minus root 16 will be 4. Root 16 will be 4 upon 2. तो एक दफा हम इसको प्लस कर देंगे, एक दफा हम इसको माइनस कर देंगे. So x will become 6 plus 4 upon 2, 6 minus 4 upon 2. Now it will become 6 plus 4 will be 10, 10 upon 2, comma 6 minus 4 upon 2 will be 2 upon 2. 10 upon 2 will be 5, 2 upon 2 will be 1. So answer is 5 comma 2. This is the answer. The value x will become x is equal to 5 and 2. 5 and 2 is the answer. This is the answer. सर जी कहिए बेटा. सर ये 2 कैसे आया आंसर? 2 कहाँ से आया? Oh sorry 1 है. जी जी 1 है बेटा. Sorry, you are right. This is 1. ये 2 2s are 1 हो गया. 2 1s are 2. 2 2 से कैंसिल हुआ, 1 आंसर आ गया. 5 and 1 is the answer. 5 and 1 is the answer. तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया. हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं. Question number 3. Minus q square plus 6q minus 5 equal to 0. Plus 6q minus 5 equal to 0. सबसे पहला हमने इसको चेक करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. तो फर्स्ट टर्म ऑन द राइट साइड मस्ट बी 0. तो वो राइट साइड पे 0 है. First condition is fulfilled. Now second condition must be in descending order. Descending order means the first term must be the largest power, the less larger than the least largest. The first term is xq square, then 6q, then minus 5. Second condition is also fulfilled. Third condition, the first term must be positive. It is negative. It is not fulfilled. So we have to change the sign. तो अगर ये नेगेटिव है तो हम सबके साइन चेंज कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो दैट विल बिकम q स्क्वायर माइनस 6q एंड प्लस 5 इक्वल टू 0. तो ये सब कंडीशन, इसने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आंसर है. q स्क्वायर माइनस 6q प्लस 2 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आंसर. अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे और फार्मूले में a की वैल्यू क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ q स्क्वायर, दैट a इक्वल टू 1. b क्या है? -6.
और c क्या है हमारे पास +5। ये मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन जैसा ही है, सब x की जगह q आ गया, x की जगह q आ गया इसमें। आप फार्मूला लगा देंगे, x नहीं है यहाँ, क्या है हमारे पास q है, तो q x की जगह q लिख देंगे इक्वल टू माइनस b की जगह -6 प्लस माइनस होल रूट -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और b की जगह 5 अपॉन 2a, 2 × 1। ए बी सी जितने भी हैं सबको ब्रैकेट्स में लिखना है। देन माइनस माइनस +6 प्लस -36 -20 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √16 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा √16, 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो 6 + 4 हो जाएगा, q विल बी इक्वल टू 6 + 4 अपॉन 2, 6 - 4 अपॉन 2, 6 + 4 will be 10 upon 2, 2 upon 2, 5 and 1। आंसर हमारे पास आ गया q is equal to 5 and 1। 1 and 5, 5 and 1 किसी कुछ भी लिख लिया, पहले लिख दें को बाद में लिख दें। ये प्लस वाला हमने पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में, या माइनस वाला पहले लिख लिया, प्लस वाला बाद में, कोई हर्ज नहीं है। एक दफा प्लस में ले लें, एक दफा माइनस में, तो पहले माइनस में ले ले फिर प्लस में, या पहले प्लस में फिर माइनस में, एज यू लाइक। सो बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ इसमें क्या फर्क था कि पहले को हमने ये नेगेटिव था, हमने इसको पॉजिटिव में चेंज किया है। तो क्वेश्चन 1 की तरफ से था। सर आपने थर्ड स्टेप में 2 की जगह है ना 20 लिख दिया। 2 की जगह यहाँ पर जी तो 20 तो है ना बेटा, 4 × 1 × 5 20 है ना। सर नीचे अच्छा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में। हाँ ये सही, ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला और थर्ड एक जैसा था, सिर्फ ये फर्क था कि उसमें नेगेटिव नहीं था, उसमें पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है। वहाँ एक्स था, यहाँ क्यू है। क्यू होगा तो हमने क्यू ही लिखना है, याद रखिए, ये नहीं कि एक्स फार्मूले में एक्स है तो एक्स ही लिखते चले जाए, जो क्वेश्चन में वही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, p² - 7 = 0। अब इसमें देखें हमारे पास p² है, यानी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होती है जिसमें क्या हो कि सबसे उसमें एक वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, नीदर लेस देन 2 नॉर मोर देन 2, वो क्वाड्रेटिक होगा। जिसमें वेरिएबल की पावर x हो, y हो, q हो, p हो, जो भी हो, उसकी पावर 2 होनी चाहिए। अगर पावर 2 नहीं है, पावर 2 से कम है या 2 से ज्यादा है, पावर 1 है या पावर 3 है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, याद रखिए, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक सिर्फ वही इक्वेशन होंगी जिसमें वेरिएबल रेज टू पावर 2 हो, नीदर लेस देन 2, 1.5 नहीं होना चाहिए, और
ना 1 होना चाहिए पावर, ना 3 होना चाहिए, ना 2.5 होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए बस। The only 2, the variable power should be only 2 मैक्सिमम जो है। उसके बाद उससे कम भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो है वो पावर 2 होना चाहिए, 2 से ना तो कम हो ना 2 से ज्यादा हो, मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम जो पावर है P की पावर 2 है, तो इट मीन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब देखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। राइट साइड पे हमने इसको 0 कर देना है, तो राइट साइड पे हमने 0 कर दिया, एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले Q पावर 2 वाला आना चाहिए, फिर पावर 1 और फिर विदाउट पावर। तो पावर 1 वाला तो इसमें है ही नहीं कोई टर्म, पावर 1 वाली कोई टर्म नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो हम उसको 0 लिख देंगे। 0p, x नहीं, यहाँ हमारे वेरिएबल p है तो 0p कर देंगे और फिर विदाउट p। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। ins आर आउट 1287। ओके, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसमें ये सर भी अगेन बताइएगा एक दफा ये ओपी। ये पहले p की पावर 2 है, फिर p होना चाहिए पावर x, वो नहीं है तो उसको हमने 0p कर दिया, उसको हमने 0p कर दिया। उसके बाद कांस्टेंट है यानी विदाउट वेरिएबल, तो वो विदाउट वेरिएबल ये मौजूद है, वो हमने लिख दिया। और पहली टर्म पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है और राइट साइड पे 0 है और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो ये तीनों कंडीशन, तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसमें a क्या है हमारे पास, द पावर कोएफिशिएंट ऑफ पावर 2 दैट इज 1। a हमारे पास 1 हो गया, b हमारे पास 0 हो गया, इसको प्लस 0, 0 को प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 के कोई साइन नहीं होता, हमने 0 कर दिया। अब c क्या है हमारे पास, -7, c -7, a b c तीनों की वैल्यू हमने लिख ली। अगर कोई टर्म नहीं है हमारे पास, उसको हम 0 कंसीडर कर देंगे, उसको हम 0 कंसीडर कर देंगे। अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे, x की जगह हमारे पास p है, सो p इज इक्वल टू माइनस b की जगह 0 ब्रैकेट में प्लस माइनस √b², 0 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 1, c की जगह 7 अपॉन 2 इंटू 1। फर्दर -0 तो 0 रहेगा, प्लस माइनस रूट 0 का स्क्वायर 0 होगा, खत्म हो जाएगा, -7 सॉरी, दिस इज -7। माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 4 7 20 अपॉन 2। अब इसको अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 28 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, लेकिन हम इसको 4 इंटू 7 कर सकते हैं। 28 को क्या कर दिया हमने, 4 इंटू 7, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस माइनस √7, √7 अंदर रहा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस √7। ये p की वैल्यू आ गई, p का आंसर आ गया प्लस माइनस √7, यानी दो आंसर आ गए। क्या आ गए आंसर हमारे पास, एक p विल बी इक्वल टू, एक √7 आ गया
और एक -√7 आ गया। प्लस वाले को विदाउट साइन के हम ऐसे लिखते थे और एक -7 आ गया, यूं लिख दे या यूं लिख दे, दोनों तरह हम लिख सकते। ये हमारे पास आंसर आ। तो इसमें √28 में मिडिल टर्म नहीं थी, तो मिडिल टर्म को हमने 0p सपोज कर लिया। 0p 0 इंटू पी। बी एक्स का क्या मतलब होता है? b इंटू एक्स। बी एक्स का क्या मतलब होता है? b इंटू एक्स। और ये 0 इंटू पी का मतलब 0 इंटू पी विल बी 0, तो वो 0 रहेगा, खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने इसको फिल इन द ब्लैक्स करने के लिए हमने उसको 0p लिख दिया, ताकि हम फार्मूले में b की वैल्यू पुट कर सकें, इसलिए हमने उसको 0p लिख दिया। ये तो फार्मूला लगाने का तरीका था, और एक उससे भी आसान तरीके से ये डायरेक्ट हो जाएगा फार्मूले के बगैर। वो कैसे है? p स्क्वायर इज -7। यहाँ से शुरू करते हैं। p स्क्वायर -7 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। उसामा खान। ये हमारे पास क्वेश्चन है, p स्क्वायर -7 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसमें बीच वाले मिडिल टर्म नहीं है, तो सिंपल सी है, एक तरफ p स्क्वायर रह जाएगा, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाए, इट विल बिकम p स्क्वायर इज इक्वल टू 7 -7 will go on the other side, it will become p square is equal to -7. Now to find the value of p, we will take the square root both the sides. इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, और इस तरफ नंबर जिस तरफ हो, जो आंसर हो रहा है उस तरफ हम प्लस माइनस कर देंगे। तो ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया, p आ गया यहाँ सिर्फ, और ये +-√7 हमारे पास आंसर आ गया। जो पहले हमने आंसर निकाला था वही आंसर आ गया, p इज इक्वल टू +-√7। तो इस किस्म के क्वेश्चन जिसमें मिडिल टर्म ना हो, हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट हो और स्क्वायर वाली टर्म हो, एक स्क्वायर वाली टर्म हो और एक सिर्फ कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को उस तरफ ले जाकर आप स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ, और जब स्क्वायर रूट ले राइट साइड पे, उसके साथ प्लस माइनस लिखते। सर हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करना जरूरी होगा, जैसे कि आंसर के पास आपने p इक्वल्स टू √7 और कॉमा डाल के -√7, सर यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं? यहाँ तक जी यहाँ तक। यही तो है आंसर, और क्या है? वो तो एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक। वो तो वहीं से शुरू किया मैंने, शुरू से शुरू किया, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया है, इसको तो आगे नहीं बढ़ाया भाई, इसी को ओके शुरू किया ना, उसी क्वेश्चन को किया, देख तो लिया करो तुम कि वही क्वेश्चन हो रहा है। इसको आगे बढ़ाता हूँ तो फिर तो कह सकते हो कि यहीं तक छोड़ दे जो आपने आगे बढ़ाया है। इसको तो मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं, लिख दिया यहाँ आंसर, ये लिख दिया आंसर, तो ये फाइनल हो गया जब आंसर लिख दिया तो। ओके सर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, q स्क्वायर -6q - 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी सब पहले राइट साइड पे 0 होना चाहिए, वो है। दूसरा फिर हमने क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट q स्क्वायर, देन q, देन विदाउट q, तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी है। थर्ड क्या चीज देखनी है, फर्स्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव,
तो फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, वो भी सही है। तो ये तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं, तो देयरफॉर दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी विल फाइंड ए क्या है हमारे पास 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ q स्क्वायर विल बी 1, b क्या है -6 है, कोएफिशिएंट ऑफ q, और c क्या है -9 है, दैट इज द कांस्टेंट। फार्मूला पुट कर दें, x की जगह हमारे पास q है, q इज इक्वल टू माइनस b की जगह -6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -6 स्क्वायर then -4ac, -4 into a is 1 और c is -9 upon 2 into 1. That will be equal to minus minus plus, minus into minus will be plus 6 plus minus -6 का स्क्वायर 36 और -4 into 1 into 9 minus minus plus 4 9s are 36 upon 2. 36 plus 36 will be 72. 6 plus minus root 72 upon 2. अब रूट 72 का तो हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं निकलता 72 का। याद रखिए, जब नंबर के आखिर में 2 हो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकला करता। नंबर के आखिर में 2 होगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। बाकियों के चांस हैं, 3 होगा आखिर में तो नहीं निकलेगा, 2 होगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 7 होगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो बाकी के चांसेस हैं। मसलन अगर आपके पास 1 है आखिर में तो उसका चांस है कि इसका स्क्वायर रूट निकल आए, फिर 4 है तो उसका चांस है स्क्वायर रूट निकल आए, 6 है उसका चांस है स्क्वायर रूट निकल आए, 8 का नहीं निकलता, और फिर आपके पास 9 होगा तो उसका चांस है। तो ये है चांस है उनके मतलब। लेकिन अगर आखिर में 3 आ गया तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, 7 आ गया नहीं निकलेगा, 2 आ गया नहीं निकलेगा। बाकी के कुछ चांसेस हैं। 1 0 है तो नहीं निकलेगा, डबल 0 होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, सिंगल 0 होगा तो नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस